Good morning to all of you, dear friends. We will start third chapter, and we have discussed the chapter about how the state government works. And I hope the all students are join the live classes, and they will because of this is a live classes on, and this is a doubt class also, so you can ask me questions in the live class. Got it? So basically, uh, I'm saying this one is doubt class also. So how the state government works? So last year we discussed the fact that government worked at a three level: local, state and national level. So as you know कि हमारे पास तीन तरह की लेवल्स हैं यहाँ पर: लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट. एज आई टोल्ड यू, लोकल गवर्नमेंट इट मीन्स ग्राम सेवक एंड द बीडीसी मेंबर एंड द जिला पंचायत. स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ कि जहाँ पर एमएलएज को वी विल choose and elect. And last one, national, it means there is we we have choose the member of parliament. Got it? So today we will discuss about how the state government works. So there is a story that whose responsibility. Got it? So कि if you see and if you read this story that hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up, and so have tanks. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distances. So as you know कि basically in the box इस boxes में most of the common thing to the people. And कि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पीपल को फेस करनी पड़ती हैं in their daily routine. Got it? Like water की shortage, electricity की shortage, and other most of the important part of the life shortage in this visualization you can see. So we will discuss about that how the state government works. So सबसे पहले as I told you who is an MLA. तो मैंने MLA के बारे में आपको बताया था that you have read about some events in Patalpuram. Okay, you may be familiar with some official name such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA and the legislative assembly? So as I told you कि जो भी member of legislative assembly होता है that we call MLA. ठीक है, which is the elected by the people. Got it? As I told you कि 2017 में देयर इज इलेक्शन इन लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, तो एमएलएस के इलेक्शंस हुए थे. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, गॉट इट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक एमएलए को क्या करती हैं, इलेक्ट करती हैं इन अ पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, तो जिसे क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं. गॉट इट. सो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज. For example, look at the map below. Constituencies. So as you see, there is a constituencies like कि बहुत सारी states हैं. और मैं सिंपल सी एक आपको लैंग्वेज में आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. लाइक if you see that there is a simple example from Uttarakhand. Got it? As I told you, there is a 70 MLAs elected by people. Got it? अब इसमें क्या है कि अब अच्छा हो टोटल वैसे 71 है, बट एमएलएज जो यूके में हैं जो इलेक्टेड बाय पीपल हैं वो 70 है. गॉट इट.
71 इसमें वन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. Okay, so there is a 70 MLAs which is elected by people. Got it. तो ये क्या है, जैसे पिथौरागढ़ है, अब कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम बात कर रहे हैं, लाइक पिथौरागढ़. गॉट इट. अब पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ में देयर इज 4 MLAs. अच्छा, अब हम कहेंगे कि यहाँ 4 MLA हैं. भाई चंपावत में तो कितने MLA हैं? चंपावत में 2 MLA हैं. और क्यों ये डिफरेंस क्यों है दोनों डिस्ट्रिक्ट में? दोनों अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन दोनों में क्या है डिफरेंस है कि एक में कितने MLAs हैं, एक में है 4 MLA, और एक के पास कितने MLA हैं, एक के पास 4 MLA हैं. ठीक है, इट मीन्स कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास हैं 4 MLA, और ओके, और चंपावत डिस्ट्रिक्ट के पास हैं 2 MLA. तो ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस इसलिए वो एरिया पे डिपेंड करता है. गॉट इट. जो पिथौरागढ़ है इसका एरिया बड़ा है, इसकी पॉपुलेशन, ठीक है, एरिया प्लस पॉपुलेशन इम्पोर्टेंट है. ठीक है, पॉपुलेशन, तो पिथौरागढ़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसके यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज में इसको डिवाइड किया गया है, और ये इसमें 4 MLAs वी विल इलेक्टेड to the member of legislative assembly. And second thing, there is Champawat there is less population, so there is a 2 MLA. Got it. So यहाँ पर उनको रीजन में डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं. ठीक है, किसी भी MLA का जो रीजन होता है दैट वी कॉल कॉन्स्टिट्यूंसी. ओके, सो एज यू नो कि कोई भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में तब आती है जब उनके पास क्या होता है, हाफ से ज़्यादा क्या होता है, एक हाफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स. लाइक उत्तराखंड में अगर इफ़ यू सी दैट इन उत्तराखंड देयर इज अ 70 MLA, देयर इज अ 70 MLA. Got it. 70 MLA हैं which is elected by the people. Got it. अब इसका हाफ 70/2 यानी कि 70/2 इट मीन्स 35 प्लस वन मेजॉरिटी जिस भी पार्टी के पास होगी, दिस पार्टी विल बी इन मेजॉरिटी एंड उसका CM होगा. गॉट इट. लाइक अभी उत्तराखंड में बीजेपी के पास 58 सीट्स हैं. गॉट इट. कांग्रेस के पास 11 समथिंग सीट्स हैं. ठीक है, तो 58 इट मीन्स 36 से तो बहुत ज़्यादा है ना ये. सो इट मीन्स अभी बीजेपी की क्या है यहाँ, रूलिंग गवर्नमेंट है. गॉट इट. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मेजॉरिटी पे डिपेंड करती हैं. ओके, और अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी में इट मीन्स जो MLAs इन जो रूलिंग पार्टी में नहीं हैं, जो बचे हुए MLAs हैं वो अपोजिशन पार्टी में चले जाते हैं. ठीक है, ओके. सो कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस, सो एज यू नो, लाइक मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी. ये इसमें हिमाचल प्रदेश का एक बहुत अच्छा क्या दिया है, एक एग्जांपल दिया है. लाइक 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं हिमाचल प्रदेश में, एंड एज यू नो कि 68 में से 34 से ज़्यादा MLAs जिसके पास होंगे वो क्या होगी, उसकी क्या होगी, वहाँ गवर्नमेंट होगी. ओके, सो उसके बाद क्या होता है, जिसकी गवर्नमेंट बनती है, लाइक जो भी चीफ मिनिस्टर होता है वो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज. They have separate offices. A legislative assembly is a place where the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. So as you know कि देखो रूलिंग पार्टी का जो भी लीडर होता है वो CM बनता है, एंड CM जो है उसके बाद अदर मिनिस्ट्रीज़ में अपनी पार्टी की मिनिस्ट्रीज MLAs को क्या करता है, कार्य देता है. गॉट इट. तो इतना आज के लिए काफ़ी है. सो आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. एक लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट कैसा होता है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, नॉट इन MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल. गॉट इट. ओके, हैव अ नाइस डे.